थोड़ा वेट कर लें 5-7 मिनट ऑडियंस थोड़ी सी आ जाए. Assalamu alaikum everyone. My name is Waleed Mukhtar, an officer in team seminars of NUCS. NUCS is a computing society of Fast University Islamabad, which has organized several seminars, workshops, and events for students in CS department as well as other departments. And today we have Sarisham Sarwat and Muhammad Asim with us, and I am very grateful for them for taking out time from their busy schedules and sharing their valuable experiences with the students. And now I'm going to hand over the mic to Sarisham. Thank you. Thank you, Waleed, for this gracious introduction. I have no idea how does Google Meet works, but I assume I'm audible and as well as my video can be seen. If that is the case, I'll just kickstart the presentation. And this is going to be a conversation about freelancing, the possibilities, the opportunities. But before I begin, if someone can just answer my question, I'll be grateful. Yes, sir, you are perfectly audible and visible. So my name is Sarisham Sarwat. I'm a freelancer. I'm a self-empowered, employed individual who has been doing this thing for more than 2 decades. I started freelancing in 1997 and ever since been self-employed. I'm the first and not only the first Pakistani, but also the first South Asian who was ranked in top 10 search results of one of the world's largest freelance marketplace called Guru.com. And on Guru.com, I was privileged enough to have made over $1 million in sales as a freelancer, offering different skill sets. And then also, I was showcased in their Hall of Fame, which essentially was a showcase bracket for presenting an outlook of Guru.com, the face of Guru.com. And I was the first South Asian who was featured in that Hall of Fame for around 12 weeks. It's a shame that they have removed that system now. But fortunately, to say the least, as someone who was not only able to make a name for himself, but also present his country at the highest level, something I take a lot of pride in. Now, precisely jumping in, diving into the freelancing sea. When you talk about freelancing, of course, if you understand the buzzword, it has taken a lot of popularity in recent last 12 months precisely, because amid COVID-19, since we have seen a lot of small businesses filing for Chapter 11 bankruptcy in the US, and a lot of small businesses being forced to shut down their brick and mortar presences because of the smart or absolute or partial lockdowns, people are heading to internet to make ends meet and make a living, which essentially highlights the importance of learning a skill and offer those skills as a services and make money in return. One of the best way of offering your skill set and make a reasonable amount of money is through freelancing. What happens is there are many freelance marketplaces, commonly known as marketplaces, but they are websites, right? So clients from all over the world, they come in, they post their project, freelancers. If a project matches their particular skill set, they bid on a project, and of course, based on their portfolio, based on their profile, based on their proposal, based on their communication skills, employer decides to award them or reject them for their particular project placement. So assuming if someone is selected for a particular project, in the freelancing term, we call it awarding a bid. And once they get awarded, they get the job done. They take their money, withdraw it from freelance marketplace to their local banks in Pakistan, and that's about it. This is what freelancing is. To dive deep into the specifics of the mechanism how freelancing essentially works, I would like to give you few
takeaways from this conversation. And if you hear me out closely and pay close attention to this, I think you will be not only you'll be able to understand the importance of learning a skill, but you'll also be able to cement your place as a prominent freelancer on different marketplaces. So first thing first, if you want to become a good, successful freelancer, try to understand the importance of learning a skill. As a freelancer, as a tech freelancer, it is naturally understood that only technical services will be in demand. So if you're a creative enough soul who loves creativity, then of course you can take graphic designing as a freelance option. If you are smart enough and can code, can solve a problem, then programming would be an ideal field for you to choose. If you like writing, and be it a ghostwriting, be it writing for blogs, of course, you can jumpstart your career as a freelance writer. And same goes for all other skill sets. For example, the software we are using right now for this collaboration is meet.google.com. Somebody must have made this software, and this falls in the category of software development. The user interface you see here is UX UI design, interface design. Some engineers would have probably worked on in integrating the voice system. So therefore, whatever software is created, whatever website is created, whatever design work is created, it requires a technical skill resource. Now, moving down to offering your skill set, assumingly you have acquired a skill set, how do you write proposals that win projects? This is where the actual challenge is, and it's $1 million question. As far as I'm concerned, if you respond to the actual project requirement without beating about the bush and over bragging about your expertise, and if you sound like you're Superman or you're Spider-Man or you're an Iron Lady, trust me, you won't be able to go places as a freelancer. So the takeaway here is one needs to focus on addressing the problem put forth in a placement. So if someone is looking for a web development, of course your proposal needs to pin down all the specifics, detailed solution of designing or developing a website, which includes but not limited to the time period it will take to complete a project, the actual price it will take for completing a project, with no hidden prices, of course. And then, the milestones. So when you talk about milestones, you talk about not only identifying, but also agreeing to the payment milestones based on deliverables. So if you get 25% of the task done, you would probably be entitled to request your client and ask them, release 25% of the payment. Same goes for the next milestone. So if you complete half of the project, you can request your client to release 50% of the payment, so on and so forth, all the way till the completion of the project. And once you get paid in full, of course, the client leaves you a feedback. You can leave a feedback to the client, depending on the scale of 1 to 5, which is the 5 stars. And this is it. That is the traditional freelance marketplace where clients come in, they post a project. As a freelancer, you bid on the project. If your proposal is good, client contacts you, and then, of course, it depends on your communication skills. There's a spin to the concept of freelancing as well. Traditional marketplace, client comes in, they post a project. But in the case of non-traditional freelance marketplace, freelancers post their service, client comes in, they skim through the different services, commonly known as gigs, and if they like what they see based on pricing, based on thumbnails, based on portfolio, based on description, based on different packages, they can hire you for a job
by ordering your gig, which essentially means buying your services. So if I try to put things in perspective, traditional freelance marketplace means client comes in, they post a project, freelancers bid on the project, and then of course, if client likes what they see, they want your project. In the case of non-traditional freelance marketplace, which is commonly known as Fiverr, right now it is the only marketplace cementing their position as a non-traditional marketplace. Clients come in, they browse through different services known as gig, and if they like a gig, if they like a service, they make a purchase or they put an order, and that is known as giving an order, buying a gig, of course. And then, of course, the conversation that takes place after a project is awarded or a gig is ordered. It depends on your milestones and depends on your communication skills, and if you get the job done, you get paid, and then you can withdraw the money from a marketplace to your bank account. The only way you can scale up your freelance businesses, if you bid on more projects, naturally you are giving yourselves a fair chance of winning more projects. And if you win more projects, somewhere down the road you'll be inclined to feel the necessity of hiring more people to work for you. So that is where you start empowering more people around you. You give employment opportunities. Perhaps you can switch the gears of freelancing to establishing a software house. And from there onwards, you can create a software house, and perhaps you can create your new startup, do some experiments and come up with an entrepreneurship spirit, solve a problem by creating a product, and the list goes on and on. But the thing is, the whole journey starts as a freelancer, as someone who's been self-employed, someone who works for themselves, someone who's boss of their own, someone who works for the comfort of couch at home. This is it, folks. This is what I've been doing for the last 2 decades, and as an instructor who has taught over 1.5 million Pakistani bacha on digskills.pk, something that is good enough to be told to my grandchildren when I get to that point. Something I take a lot of pride in. I hope this is it. And if there's anything you would like to ask as far as this discussion is concerned, I'll be more than happy to answer it for the next 5 minutes before I beg your leave. Any questions you guys have, you can type in the chat, and I will make sure that they reach Sarisham. I'm going to count. Okay, there you go. Okay. Sir, there is a question that can you repeat the website's name? The website is Fiverr.com. The non-traditional freelance marketplace is called Fiverr.com. So I want you to go to Google, type in Fiverr. It's a double R, Fiverr. As the name suggests, it talks about five. So initially, Fiverr used to focus on $5 projects. It was sort of like a $1 shop where you would get into the shop and buy anything for $1. But then in the case of Fiverr, initially the concept was to buy services for $5. But that has evolved over the years. Digskills.pk is the website name. If you have recorded this lecture, I would request everybody to watch this again because of my speed, because of race against the time, I tried to probably deliver this in fourth gear, so you may want to watch this again to understand it better. Does that make sense, folks? There is a question that how to time manage the time, because they are saying that CS is a degree which has a lot of workload. यार बात सुनो, आसमान से तो उतरे नहीं हो. I've done CS, I've done MBA, I've done masters in management, and while I was
in school, I was still doing freelancing. I'm talking about 1997. So from 1997 to 19, here's the thing. The last 2 semester fees of my MBA studies, they were paid in full by my freelancing. So I fail to understand why do people even complain about time management. If you put yourself on a clock, if you follow a rigid timeline, I'm sure you can set aside time for your freelancing. And of course, the primary focus has to be your studies. I get that. But at the same time, if you put yourself on a clock, you can focus on freelancing as well. Folks, this is it. I got to run now. I got a guest here who's coming in 10 minutes, so I better dress up. I wanted to do this. Sorry for being so, it's a race against the time, to say the least. Okay. So, Thank you, sir, for your precious time. It was great to meet you. thank you, and I wish you all the very best. Think about freelancing. Think about self-empowerment. Think about paying your tuition fees. Think about reducing the burden on your parents. Think about financial empowerment. If you think from that particular perspective, I can assure you not only you'll come up with the right solution for freelancing, but you will probably be inclined to take it as something you want to do for the next decade or so. Wishing you all the very best, and you guys have got amazing emojis. So what I see is a pistol pointing at me, Aishwarya Iman Khan. Then I see Batman with a Batman emoji. Amazing, folks. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Muhammad Asim, you can take over the mic. Assalamu alaikum, guys. Let me know. Am I audible? Walaikum salam. Yes, you are perfectly audible. Thank you. Okay. तो गाइस सर हिशाम ने आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दिया है, ठीक है. तो मेरा जो आज मुझे उन्होंने टास्क दिया हुआ था न्यूसेज वालों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. और आई एम ऑनरेबल कि मैंने सर हिशाम के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो आई वुड गो थ्रू सम प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग क्यूए सेशन कर लेंगे. बिल्कुल कोई टिपिकल सेशन नहीं होगा. किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा, इनफैक्ट कोई जो भी मॉड्यूल कवर होगा लाइक वाइल क्रिएटिंग सम अकाउंट्स, और जो भी प्रोसेस है अपने प्रोजेक्ट को कैसे गेट करना है और प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, उससे पहले आपने अपनी स्किल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो उनके बाद जो है थोड़ा सा बहुत मैं पूछ लूँगा कोई क्वेश्चन वगैरह अगर किसी का हुआ, ठीक है. आई वुड शेयर माई स्क्रीन, और पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं. Please let me know when my screen is visible to you guys. Okay, I'll let you know. Yes, screen is Okay. visible to everyone. अच्छा गाइस, रियली सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, उसकी वजह से मैंने कुछ नोट्स नहीं बना सका. लेकिन मैं जो है जनरल ओवरव्यू कर देता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें फ्रीलांसिंग में, उसमें सबसे पहले कोशिश ये करो कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि किस चीज़ पे काम करना है, और उसमें फिर जो है चीज़ ये है कि कोशिश करो उस चीज़ का स्टिक करो. आप लोग, मैं यूजली मीट पे देख रहा था कि ज़्यादातर जितने भी लोग थे वो 19 बैच से थे, 20 से. इनफैक्ट मैं खुद 18 बैच से हूँ, और मैं अभी इस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर, जैसे सर हिशाम ने एक्सप्लेन किया कि कुछ लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग एज अ कैरियर नहीं हो सकता, लेकिन सर हिशाम ने जैसे एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर.
कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट आई है, देन यू हैव टू स्टार्ट योर सॉफ्टवेयर हाउस, देन यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट। तो इस टाइम पे लाइक आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग व्हेन आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर, ऊप जब चल रही थी उस टाइम पे। और देन उसके बाद जो है विद इन 1-2 ईयर्स जो एक प्रोसेस हुआ मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये है कि स्टिक, और अभी इस टाइम पे हम लोग जो है एक प्रोडक्ट पे काम करें E11 में, इस्लामाबाद में मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, और साथ में मेरी डिग्री भी चल रही है, मेरा 18 बैच है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो खैर शुरू करते हैं, ठीक है। ये फाइवर है, ठीक है, fiverr.com पे सिंपली जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का अकाउंट है, ये बिल्कुल अकाउंट काफ़ी पुराना है, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। लाइक इस पर कोई ऑर्डर आ जाए तो चलो कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फ्रीलांसिंग से अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप काम करते हो और वहाँ से प्रोजेक्ट करते हो। तो ये लाइक अराउंड 1 ईयर पहले शुरू किया था, ठीक है। और इफ़ आई शो यू माई अर्निंग, तो इट्स लाइक 1 ईयर आई हैव मेड लाइक अराउंड $9,000, और ये पाकिस्तान के 15 लाख रुपए बनता है अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी। इसलिए मतलब मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, फिर एग्जाम्स आते हैं, आप कस्टमर रिलेशन उस तरह नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये फाइवर वाला प्रोसेस था, ठीक है। ये पोटेंशियल आप लोग खुद ही देख लो, ठीक है। और ये वो अकाउंट है जिसमें मैं काम नहीं कर रहा, मेरे पास इस टाइम पे 4-5 अकाउंट हमारी एजेंसी के अंडर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपवर्क है, ठीक है। अपवर्क पे अकाउंट ये मेरा, या मैं यहाँ पे एज अ पाइथन डेवलपर, बॉट डेवलपमेंट, वेब ऑटोमेशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ही 1-2 लोग जो है वो मेरे साथ अटैच है, और उसमें हम लोग जो है डिफरेंट कोडिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इसमें भी सेम बिल्कुल स्टार्ट किया था, इवन दो आप लोग जाके या नीचे से जाके जो है मेरी वर्क हिस्ट्री देख लेना कि विदन लास्ट ईयर ही शुरू किया था, और अराउंड ईयर $10,000 प्लस अर्निंग हुई है विद इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। और ये सब यूनिवर्सिटी के साथ है। इनफैक्ट मैं जो इनको टाइम नहीं दे सकता प्रॉपरली, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी फिर मैनेज करनी है, आपकी जो है एजुकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप टाइम के साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, एज सच इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। आपको कुछ चीज़ें टाइम के साथ अवॉइड करनी पड़ती हैं, लेकिन वंस यू गेट स्टेबल, यू बिल्ड द टीम, उसके बाद कोई इशू नहीं होता, ठीक है। और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ पे बहुत मैं जब भी सेशन करता हूँ इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि अकेले कुछ नहीं करते, फाइंड समवन, ठीक है, जो विलिंग है काम करने के लिए आपके साथ, उसमें पैशन है, और टीम बिल्ड करो, ठीक है। टीम बिल्ड होगी तो आपका काम अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ओवरव्यू करते हैं, फाइवर है क्या चीज़ है और यहाँ पे क्या है। जैसे सर हिशाम ने एक्सप्लेन किया कि फाइवर पे जो है ये मार्केट प्लेस शुरू ही $5 से ये शुरू होती है, ठीक है। और इसमें प्रोसेस ये है कि इफ आई गो इनटू इनकॉग्निटो मोड, ठीक है, यहाँ आप लोग तो फ्रेश हो, ठीक है, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सिंपल फाइवर पे जाओ, ठीक है। और फाइवर पे जाके ना आपको ये डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है। इनका यहाँ पे सिंपल आपके पास डिफरेंट सर्विसेज आ रही हैं, लोगों सोशल मीडिया, ठीक है। और जहाँ पे प्रोग्रामिंग की साइट थी ओवर हेयर, ठीक है, हमारे पास वर्डप्रेस आती है कोडिंग में। अब इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया डेटा साइंस को भी, डेटाबेसिस, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह, ठीक है। अब इस पे अकाउंट बनाना है सच कोई वो नहीं है, ठीक है। आपने योर ईमेल, ठीक है, या कोई गूगल, बट आई प्रेफर कि अपना आगे प्रोसेस आता है कि आप अपना पासवर्ड देना है, अपनी प्रोफाइल देना है। अब प्रोफाइल में आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मेक श्योर करो कि उस पर जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको जो है रियल दो, ठीक है। डोंट ट्राई टू स्कैम या कुछ फेक इंफॉर्मेशन का फायदा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, आप फॉर एग्जाम्पल ये कल को फाइवर वाले इस टाइम पे कोई वेरिफिकेशन नहीं करे, ठीक है। मैं यहाँ पे लेवल 2 सेलर्स आई कंप्लीटेड लाइक अराउंड 150 प्लस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब कल को फाइवर वाले मुझसे जो है पूछते हैं कि यार मुझे जो है इसकी वेरिफिकेशन दे दो, डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो ना उस टाइम पे जो मेरी प्रोफाइल में जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको वैलिडेट ना करे, तो आपकी जो 1 ईयर की मेहनत है वो बिल्कुल ज़ाया जाती है। आपकी फाइवर की जो प्रोफाइल है ना, ये इसको जस्ट इमेजिन करो कि ये आपका कोई लोकल जैसे स्टोर होता है, उसी तरह ये एक आपका ऑनलाइन स्टोर है, आपकी ऑनलाइन अपनी मार्केट प्लेस है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने काम किस पे करना है, ठीक है। अब तो मोस्ट ऑफ द गाइस आप में से पाइथन में काफ़ी लोग हैं, ठीक है। पाइथन में जो सबसे बेसिक मॉड्यूल आता है ना, जहाँ से मैंने शुरू किया था, वहाँ में वेब स्क्रैपिंग आती है। इफ़ आई गो टू दी वेब स्क्रैपिंग वन, ठीक है, यहाँ पे सिंपल टाइप करो वेब स्क्रैपिंग, ठीक है।
अब वेब स्क्रैपिंग में आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि वी हैव अराउंड 6000 प्लस सर्विसेज, ठीक है, और ये एक कम्पिटिटिव निच नहीं है फाइवर पे, बिकॉज इफ आई गो फॉर दी वर्डप्रेस और लोगो डिजाइन, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन लिखता हूँ, तो अराउंड 1,43,000 लोग जो इस चीज को ना ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत कम्पिटिटिव नेचर है। तो एज अ पाइथन अगर आप वेब स्क्रैपिंग, आई एम नॉट प्रेफरिंग, ठीक है, इस चीज के साथ स्टिक ना रहने कि आपने सिर्फ उसी चीज के साथ काम करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यू हैव टू फाइंड, और आपने अगर कर लिया, आपने डेटा एंट्री करनी है, आपने लोगो डिजाइन करना है, आपने ग्राफिक में कुछ करना है, आपने वीडियो एनिमेशन वगैरह कुछ भी करना है, वेबसाइट बनानी है, .NET पे काम करना है, रिएक्ट पे काम करना है, जिस पे भी करना है, यू मस्ट हैव टू एक्सप्लोर कि यार उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई काम है, ठीक है, उसमें कितना कंपटीशन है, क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, ठीक है। अब इस फील्ड में अगर एक बंदा जो है सिंपल आ रहा है यहाँ पे, उसने अपनी गिग्स पोस्ट की है, आपने जब अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है तो उसके बाद आपके पास जो है इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। इस तरह जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में आपने सिंपली जाना है, ठीक है, और आपने गिग क्रिएट करनी है। ये जो प्रोसेस है ना गिग वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्योंकि अगर आपकी जो गिग है वो मैटर करती है फाइवर पे, फाइवर इज गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म, अपवर्क इज द नॉट अ गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म, अपवर्क जो है कम्प्लीटली आपका प्रोफाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, प्रोफाइल पे ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फाइवर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाइवर पे आपकी गिग रैंकिंग में आई भी है, गिग को रैंक कैसे करना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें प्रोसेस ये है कि आपने जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप वेब स्क्रैपिंग की फील्ड में काम करना चाह रहे हो, तो आपने ये देखना है कि ये कंपटीशन कम है, और देन आपने उसके बाद कुछ टैग्स निकालने हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग में आ रहा हूँ तो मेरे पास ये कुछ टैग्स आ रहे हैं, आप मैक्सिमम 5 टैग्स ला सकते हो, लेकिन क्या कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग से मतलब होता है कि आप जो है उस पर बहुत ही ज्यादा अपनी गिग में सेम कीवर्ड्स रैंकिंग करने के वजह से जो है ना डाल दो, ठीक है। और उसके बाद ये सिनेरियो है कि आपने इनको नोट डाउन कर लेना है, सिंपली ओपन अ नोटपैड, ठीक है, और उसमें जो है इनको नोट डाउन कर लो, वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, और देन उसके बाद हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस अभी आ रही हैं, ठीक है, इसके साथ डेटा माइनिंग, क्योंकि क्लाइंट में आके जो है ना इसी चीज को सर्च करना है, ठीक है। अब इसमें एक और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करना, कि लोग जो है ना इसी को उठा लेते हैं सारे को, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये वाला है, क्योंकि क्लाइंट ने आगे सर्च किया ना वेब स्क्रैपिंग, तो वो सजेस्टेड टैग में से रादर देन वो सर्च अगेन करेगा, वो इन्हीं टैग में से किसी को पिक करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है, ठीक है। लेकिन फाइवर का जो एल्गोरिदम है रैंकिंग का, वो सेम एज लाइक जो गूगल है, ठीक है। अगर तो आपने बहुत ही ज्यादा स्पैमिंग की हुई है, लाइक आपने अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन में 10, 15, 50 कीवर्ड्स डाल दिए हैं, तो आप उल्टा रैंक होने के बजाय डी रैंक हो गए, ठीक है। और अब आपने जब गिग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको सुटेबल टाइटल जो है ना चूज करना है, और सुटेबल टाइटल चूज करते हुए यू मस्ट मेक श्योर कि आपका टाइटल कभी भी चेंज ना हो। टाइटल चेंज क्यों ना हो, क्योंकि यार टाइटल में ये प्रोसेस होता है कि आपका जो टाइटल है, आपकी जो गिग का यूआरएल है ना, वो आपका जो गिग का आपका लिंक है, ठीक है, ये जो लिंक है ना ये वाला, ठीक है, ये सारी एसईओ में आता है। एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसमें ये प्रोसेस होता है कि आपके जो लिंक्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी लिंक्स हैं, आपके टैग्स हैं, आपके टाइटल्स हैं, आपके डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, फिर इनफैक्ट आपकी प्रोफाइल का भी स्कोर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो गिग का यूआरएल है, ये आपका यूज जनरेट होता है इस टाइटल की बेस पे, तो मेक श्योर करो टाइटल एक दफा चूज करो और उसको जो है दोबारा चेंज ना करो, ठीक है। देन उसके बाद जब आपने टाइटल प्रॉपर चूज कर लिया कि लाइक आप वेब स्क्रैपिंग करना चाह रहे हो, तो यू मस्ट हैव यूनिक, कॉपी पेस्ट ना करना, ठीक है। उनका भी जैसे फास्ट में प्लेज आता है, यहाँ पे भी इनका एल्गोरिथम में प्लेजिंग वाला सीन है, कॉपी डिस्क्रिप्शन उठाई होगी, स्कोरिंग आपकी गिग की नहीं होगी, स्कोरिंग आप कहीं से चेक नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आपने गिग क्रिएट करनी है ना, तो जब आपके डैशबोर्ड आएगा तो यहाँ पे आपका स्टार्ट एज अ सेलर आ रहा होगा, सेलर आ रहा होगा तो आपने सिंपल क्रिएट गिग पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास ये 5 टैब्स का एक जो है ना फॉर्म टाइप आ जाता है जहां से आप गिग क्रिएट करते हो, ठीक है। देन सिंपली आपने यहाँ पे गिग को पोस्ट करना है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसकी यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मेरा मतलब यहाँ पे होने का फायदा ये होना चाहिए कि मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ अपने थोड़े से टाइम में चीजें वो बता दूं जो आप लोगों के फायदे की हों, ठीक है। अब आपने सिंपल यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, और जाके वहां लिखना हाउ टू क्रिएट गिग, 3-4 वीडियोस देख ली कि यार गिग कैसे बनती है, जो उसमें जो की चीजें हैं ना मैं आपको वो समझा देता हूँ कि यार जो टैग्स कैसे निकालने हैं, ठीक है।
और टैग्स के साथ जो ये टाइटल्स वाली, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें जो है ना लोग नहीं बताते। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मेक श्योर करो कि वीडियो बन जाए। अगर तो आपकी जो गिग की इमेजेस हैं, रादर देन आप इनको वीडियो बना लो। और आपने अगर अपना जो पोस्टर बनाना है ना, लाइक व्हेन यू हैव टू गिव द पोस्टर इन द गैलरी, तो आप अपना पोस्टर जो है, वेबसाइट है पोस्टर माई वॉल, ठीक है, यहाँ पे सिंपली जाओ। कोई आपको वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जाके सिंपली सर्च कर लो कुछ भी, लाइक फ्लायर, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे देखो आप कुछ आ रहे हैं, इनको सिंपल आपने एडिट कर लेना, किसी को भी उठा लो, ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है, ठीक है। इसमें काफ़ी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें से कोई भी पिक कर लो, लाइक दिस जो मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, लाइक दिस वन। लेकिन मेक श्योर के फाइवर का जो है साइज, अब ये सारी चीज़ें गूगल पे पड़ी है, ठीक है। अगर फाइवर पे जाके आराम से लिख लो कि फाइवर की बैनर का साइज क्या है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। आप सिंपल एडिट टेम्पलेट पे करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। सारे फास्ट, जो कोई ऐसा किसी को मेरा नहीं ख्याल मसला होगा इसको एडिट करने में। अच्छा सा जो है ना फ्रंट एंड इमेज बना के, ठीक है, और देन उसके बाद गिग को पोस्ट करना है। गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्चुअली ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। आपकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन होती है ये वाली। अब इसमें तो खैर इस बंदे ने जो है रैंकिंग की भी है, ठीक है। और रैंकिंग में बहुत से और मेथड्स आता हैं, लाइक आप बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की एसईओ कर दो ना, लाइक आपके डिस्क्रिप्शन अच्छी है, टैग्स अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है, लेकिन उसके साथ भी कुछ चीजें जो है वो मैटर करती हैं। अगर तो आपने वो नहीं की तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मुझे जो पर्सनली एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपकी गिग थोड़ी बहुत लाइक अनबन हो जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गिग के जो अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो अगर आपके ठीक हैं तो आप इजीली अच्छा खासा अर्न कर लोगे, ठीक है। अब वो फैक्टर क्या है अब वो ये है कि यार लोग फाइवर पे आते हैं, अपवर्क पे आते हैं, जहाँ पे भी आते हैं ना। और जो मेरे से पर्सनल गलती है, मेरा एक कस्टमर था अपवर्क पे, उसने मुझे शुरू में ना एक पाइथन का प्रोजेक्ट दिया, और उस टाइम पे मेरा कुछ एग्जाम चल रहे थे या मिड्स वगैरह कुछ हो रहे थे, और मेरे पास टाइम कम नहीं था। मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन यार मैं आपको $200 चार्ज करूंगा, ठीक है। और उसने की जो बजट था वो $100 था। उस टाइम उसने मुझे ना वो प्रोजेक्ट नहीं दिया, ठीक है। अब उस क्लाइंट को मैंने रिजेक्ट किया, और जस्ट इमेजिन करो कि यार मेरे साथ हुआ क्या। लाइक अभी तक मैं अगर उसकी प्रोफाइल देखूँ ना, वो डेली बेसिस पे एक प्रोजेक्ट पोस्ट करता है अपवर्क पे, ठीक है। और उसने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, मैंने कहा था यार न्यू क्लाइंट आया हुआ है, ठीक है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपने जब अपना बिजनेस अपने आप को डेवलप करना है इस फील्ड में, तो यू मस्ट मेक कस्टमर्स, ठीक है। क्लाइंट जितना भी ऑफर कर रहा है स्टार्ट में उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और कोशिश करो कि लाइक इफ समवन इज पेइंग $100 तो यूज कर लो, क्योंकि यार उस बंदे ने फाइवर पे जितने भी लोग जो है क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है आपको, मैं अगर आपको इवन दिखाऊं तो वो आपको जो है दोबारा जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लाइक दिस, ठीक है, इन द डेनमार्क में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और वी हैव लाइक 9 ऑर्डर्स, और ये सिर्फ जो है एक वेबसाइट के, और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है इसमें कि हम लोग, मतलब हमने अगर फाइवर पे कुछ ऑर्डर लेना हो तो चलो यार फाइवर पे ऑर्डर लगा दो, रादर देन डायरेक्ट पेमेंट ना करो, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक स्केड्यूल पेमेंट्स हैं उसके एंड से, लाइक कोई प्रोसेस नहीं है इस तरह का, ठीक है। कस्टमर बनाओ। अब क्लाइंट के साथ यार मेरा ये हुआ कि उस क्लाइंट के साथ उस डेली पोस्ट करता है, और उसने $100 से स्टार्ट किया था, और ही एंड अप राइट नाउ वो अपवर्क पे ऑलरेडी $10 के स्पेंड कर चुका है एज अ सेलर, एज अ बायर, ठीक है। तो क्लाइंट बिल्ड करो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने जब गिग पोस्ट कर लिया ना, अब जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है उसको नोट करना कि यहाँ पे यार एक सेक्शन आता है बाय रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके पास बाय रिक्वेस्ट आ रही होती है, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने जो है 1500 प्लस बाय रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे ना, आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। बाय रिक्वेस्ट सिर्फ उन लोगों को शो होती है जो लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर हैं, उनको बाय रिक्वेस्ट शो होती है, और जो न्यू सेलर्स हैं उनको बाय रिक्वेस्ट शो होती है। लेकिन उसमें एक प्रोसेस है, वो ये है कि यू मस्ट हैव अराउंड 5 गिग्स पोस्ट, आपकी 5 गिग्स पोस्ट होनी चाहिए। इन चीज़ों को बेशक नोट डाउन कर लेना, या लिंक्डइन पे आउटरीच करके पूछ लेना कि आपकी 5 गिग्स मिनिमम चाहिए, ठीक है। और 5 गिग्स के बाद आपका ये प्रोसेस होना चाहिए कि रात में अराउंड 12-1 बजे के बीच में ना ऑनलाइन रहना, और वहाँ पे आपका जो है ये बाय रिक्वेस्ट शो होती है।
बाय रिक्वेस्ट में प्रोसेस ये होता है कि बाय रिक्वेस्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक वो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो कोई और बंदा लाइक वो ऑलरेडी आउटरीच कर चुका होता है किसी को फाइवर पे आके, लेकिन उससे नहीं हुए होते, ठीक है। और उसमें फिर ये सीन होता है कि आपको उस प्रोजेक्ट के मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं रादर देन कि आपको उन प्रोजेक्ट पे या शुरू में क्लाइंट मैसेज करे, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, जब आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, सिंपली एक टेम्पलेटाइज मैसेज बना, जो है वो मैसेज बना लो और उसको लाइक सिंपली क्लिक ऑन सेंड ऑफर, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है मेरा कोई कंसर्न नहीं है यार कि वो क्या मांग रहा है क्या कर रहा है, मुझे इस फाइवर में इसमें किसी चीज़ की जरूरत है, मुझे सिर्फ अपने कस्टमर को इनबॉक्स तक लाना है, फिर वो मुझे इनबॉक्स करता है तो उस केस पे मैं उसका देख लूंगा कि यार ये बंदी का काम क्या था और देन जाके मैं कर लूंगा। सिंपल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सेंड ऑफर जितनी क्लाइंट का बजट है उससे थोड़ा सा कम, लाइक 100 का 90 का भेज के 5 डेज है 4 डेज में करके उसका मैसेज आ गया, देन आके बाय रिक्वेस्ट देख लो यहाँ पे सेंड में आके क्या काम था, ठीक है। अब ये तो अर्ली ट्रिक है प्रोजेक्ट्स लेने की, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स निकल जाते हैं और वही आपके 5 स्टार आ जाते हैं, मुझे पहला प्रोजेक्ट आई स्वेयर मुझे 3 महीने बाद मिला था, ठीक है। अब ये इस चीज को सीरियस लेना होगा तो काम होगा, ये ना हो कि यार 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ये उस तरह वाला सीन नहीं है, ठीक है। आपको टाइम लगाना है, लेकिन एक दफा आपकी मार्केट प्लेस बन गई, अब तो इवन तो कोविड है ना, मैंने भी तो कोविड में अपनी यहाँ पे एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया ना, ये जो अभी रिसेंट छुट्टियां हुई थी, तो फिर आप खुद ही इमेजिन कर लो कि आपके पास इतना जो है प्रोजेक्ट आते हैं कि लाइक आपकी जब मार्केट प्लेस बन चुकी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो चुकी है, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स इतने आते हैं कि फिर आप अपनी प्राइसेस को भी डबल कर दो तो क्लाइंट वुड पे यू, ठीक है। लेकिन स्टार्ट मुझे 3 महीने लगे प्रोजेक्ट में, फिर मुझे उसके बाद महीने बाद प्रोजेक्ट आया, फिर प्रोसेस हुआ आहिस्ता आहिस्ता, लाइक अराउंड 10th मंथ जाके जो है ना प्रोजेक्ट्स थोड़े स्टेबल हुए और उन प्रोजेक्ट्स को भी प्राइसेस कम थी, फिर एग्जाम्स होते थे, उनमें कर के आपने उनको डिलीवर भी अच्छा कर दें ताकि आपके कस्टमर बिल्ड हो, रेपिटेटिव कस्टमर हो, ठीक है। समटाइम आपकी गिग जो है डी रैंक कर देते हैं फाइवर वाले खुद, और उसका प्रोसेस ये होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये सर्च किया वेब स्क्रैपिंग, यहाँ पे मुझे लग रहा है यार 5 स्टार 4.9 5 स्टार 5 स्टार ये ऑल जितने भी लोग हैं ये 5 स्टार पे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टिल जो है क्यों नीचे हैं, या ये फाइवर का एल्गोरिथम कुछ इस तरह का ना, वो आपको टॉप पे 4-8 लोगों को टॉप पे रख सकता है, ठीक है। तो फाइवर जो है वो रोटेटिंग प्रोसेस है इनका, लाइक आपकी गिग 3-4 महीने टॉप पे रहेगी, लेकिन 3-4 महीने टॉप का मतलब यार ये है कि आपको अच्छे खासे ऑर्डर देंगे। आई स्वेयर इवन इस कोविड के पीरियड में मेरे इसी अकाउंट पे वी हैव लाइक अराउंड, मैं इवन दो अगर एनालिटिक्स शो करूं तो हमें जो है इसी कोविड को अराउंड 28 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए थे, ठीक है। और इसमें अब प्रोसेस ये होता है कि मस्ट हैव, ये कुछ फाइवर के लेवल्स हैं कि आपका लेवल 1 होता है जब आपके 60 डेज का लेवल पूरा हो जाता है, और देन उसके बाद जो है 60 डेज आपने एज अ सेलर यहाँ पे होना है, और देन उसके बाद आपकी $400 प्लस अर्निंग होनी चाहिए, देन जाके आपको लेवल 1 बनता है। और अदर देन ये चीजें ऑन टाइम डिलीवरी और ये सारी चीजें मैटर करती हैं, फाइवर इन सारी चीजों पे आपको रैंक करता है, ठीक है। आपकी गिग बेशक कुछ ऊपर नीचे हो, डजंट मैटर, आपने अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, पहला प्रोजेक्ट आपको बाय रिक्वेस्ट से मिलना है, या क्लाइंट के शुरू में 1-2 मैसेज आएंगे, फाइवर आपको सपोर्ट करेगा कि यार आपको चलो थोड़ा सा पुश दें, वो चेक करेगा कि यार एक न्यू बंदा आया है, इसको हम लोग थोड़ा सा पुश बैक, आप ऑनलाइन रहते हो, विद इन 1 मंथ आपको 1-2 मैसेजेस आएंगे, ठीक है। उन मैसेजेस को आपने कन्वर्ट कैसे करना है, कस्टमर से डिमांड पैसे की आपने उसको बाद में करनी है, उससे सारा कुछ पूछो, डोंट ये कि यार हाँ आई विल डू दिस पे मी $100, ऐसी कोई बात नहीं, उससे पूछो, उसको इस चीज में ट्रस्ट दिलाओ कि यार आप उसका काम करोगे, उसको कोई सोल्यूशन दोगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू केयर फॉर हिज बिजनेस, ठीक है, वो आपकी केयर भी करेगा, ठीक है। अगर आप उसको जाके कह दोगे यार अच्छा मैं कर दूंगा, ना आपने कोई क्वेश्चन पूछे, ना उसको फील है, क्योंकि एट द सेम टाइम वो मे बी 8-10 लोगों से कांटेक्ट में हो, ठीक है, और वही अपॉर्चुनिटी फाइवर देते हैं और वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। फाइवर को भी यही चीज है, फाइवर के भी हर डॉलर से आपके 20% जाते हैं, ठीक है। अगर $100 का प्रोजेक्ट है तो उसमें 20% फाइवर को मिल रहा है। तो अगर आप फाइवर की केयर कर रहे हो तो फाइवर आपकी केयर करेगा, और अगर आप कस्टमर की केयर कर रहे हो तो कस्टमर आपकी केयर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बिजनेस एथिक्स हैं, ठीक है, या इनको जिस तरह मर्जी ले लो, लेकिन इसमें कुछ वो नहीं है कि यार ये क्या बात हुई, न्यू सेलर्स को बिजनेस है, इसमें आप उन दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हो तो वो आपको डबल प्रॉफिट देगा, और एज लॉन्ग एज फाइवर आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, तो आपको 20% देने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब जब आपने गिग पोस्ट कर ली तो मैंने जो चीजें बताई उनको नोट डाउन कर लेना। बाय रिक्वेस्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग, और जो भी कस्टमर आया है उन सारी चीजों को ध्यान से देख लेना कि उससे क्वेश्चंस पूछना, प्रोजेक्ट को समझ के करना, और शुरू के 5-8 प्रोजेक्ट्स अच्छे से कर लेना, बेशक थोड़ी अमाउंट में, जितना $100 का भी हो तो उसको, लेकिन क्लाइंट अगर 100 दे रहा है तो उसको 100 से जो है ना 50 पे ना ले आना। लेकिन अगर क्लाइंट ने ऑलरेडी कह दिया, और सबसे बड़ी गलती होती है पाकिस्तान में या एशियन सेलर्स में, वो ये होती है क्लाइंट जब आता है तो क्लाइंट को लोग खुद कहते हैं आप अपना बजट बता दें। देखो यार, जब आप मार्केट जाते हो ना तो आपने जो चीज लेनी होती है, ठीक है, आप जाके उसको, आपको दुकान वाला ये नहीं कहता, या जो भी सेलर है वो आपको ये नहीं कहता कि आप अपना बजट बताएं, ऐसा प्रोसेस नहीं है। आपकी प्राइस है, क्लाइंट आपसे आपकी पास इस वजह से आया है क्योंकि आपने जो है उसको वो पैकेजेस में अपनी प्राइस दी हुई थी, ठीक है। आपके जो गिग होता है, जब आप गिग पोस्ट करते हो तो आप पोस्ट करते हो कि आई विल डू दिस एंड दिस, ठीक है। ये देखो, आप बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसने बेसिक्स में कहा कि मैं 240 रोज करूंगा। अब एक क्लाइंट है, उसका बजट कम है, ठीक है, तो अगर तो उसको 6000 वाली चीज जो है, रोज का डेटा जो है उसको चाहिए, उसने कहीं से स्क्रैप करना है, ठीक है, और अगर ये बंदा उसको 10,000 में करके दे रहा है और आप उसको जो है कहो यार मुझे अपना बजट बताओ, और आप उसको कहो कि यार मैं आपको 20,000 में कर दूंगा, और शुरू में आप ये चीज कर रहे हो, तो देखो शुरू में आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उनकी मार्केट प्लेस बिल्ड है, आप नहीं हो तो कोई और आके उनको कमा के दे देगा, और उनको जो कमा के दे रहा होगा वो उनको ऊपर, उसी को उन्होंने रैंकिंग में लाना है, ठीक है। इवन तो ये देखो लेवल 2 सेलर्स टॉप पे आ रहे हैं सारे, ठीक है। और देन उसके बाद ये प्रो सेलर्स हैं, इनका तो खैर एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन आई विल शो यू, सी दिस वन, ठीक है। ये थोड़ा चीप है और मे बी सर्विसेज काफी अच्छी दे रहे हैं, तो लेवल 1 सेलर है और इससे नीचे लेवल 2 सेलर्स है, ठीक है। दिस वन हैज 815 और दिस इज 3000 समथिंग, ठीक है। लेकिन फाइवर स्टिल प्रमोटिंग हिम अप क्योंकि मे बी वो अच्छी सर्विसेज दे रहा हो, रिसेंटली आया हो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, लेवल 1 पे और न्यू सेलर्स पे जब आपकी अकाउंट रैंक होता है तो फाइवर की एक्सपेक्टेशन आपसे एज अ न्यू सेलर है, उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन एज अ टॉप रेटेड एज अ लेवल 2 सेलर नहीं है। अगर आप लेवल 2 सेलर हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल 2 है, वो फिर आपसे कहेगा कि यार जो लेवल 2 सेलर बन चुके हो, मैंने आपको लेवल 2 का पैच दिया, आप मुझे लेवल 2 जितना अर्न करके दो, ठीक है। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन होगी आपकी क्यू में प्रोजेक्ट 20 लगे हो, ठीक है। तो अगर आप न्यू सेलर हो, आप 5 प्रोजेक्ट्स भी लेके चल रहे हो, तो वो आपको, आपसे खुश हैं, उनको पता है न्यू सेलर है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यार इस सब चीजों में इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है, कि अपनी वैल्यू ना करना, क्योंकि एशियंस में मार्केट की बहुत बुरी हालात है। इवेंट्स में जाओ, जाके देखो तो मार्केट की बहुत बुरी हालात है, ठीक है। तो लोग काम जो है 50,000 वाला काम लोग 5,000 में भी एस्वेयर करके देते हैं और उसमें क्वालिटी का कसम से कोई इशू नहीं आता। वो वाला काम जो है आपको 5,000 में करके देंगे और क्वालिटी में भी उस 50,000 वाले से भी बेहतर हो। हम लोग यहाँ पे अभी पीओएस सिस्टम बना रहे थे, पीओएस सिस्टम लाइक ये CSDs या मार्ट्स में जो लगा होता है, यू आर एक्सपेक्टिंग ये बहुत हाई कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट का ये हाल हो गया कि इवन दो हमारे बिल्कुल ऑफिस के साथ एक अच्छी खासी जो है बड़ी मार्ट है और उसका पीओएस सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर हाउस ने बना के दिया वो सिर्फ 10,000 में है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हायरिंग्स कर रहे हैं वो हायरिंग्स जो है, इमेजिन करो आप लोग बेशक फास्ट से हो, ठीक है, मैं भी फास्ट हूँ, ठीक है, आप लोग जहाँ से भी हो, ठीक है। इसमें सीन ये है कि मार्केट के हालात बहुत बुरे हैं, आपको जॉब मिल जाए, आपका जीपीए अच्छा है, ठीक है, और जो भी प्रोसेस है आपकी जॉब आपको मैक्सिमम 1,00,000-1.5 लाख तक लेके जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, इवन तो 10 मंथ एक्सपीरियंस। हाँ, एक वो अलग बात है कि आपकी जॉब जो है किसी बायर के मुल्क लग जाए, आपको डॉलर्स में रेट मिल रहा है, लेकिन बायर में फिर जाने में और वहां पे भी ऑब्वियस सी बात है लोग आपके इंतजार में नहीं बैठे हुए और उनको फिर टेक्निकल एक्सपीरियंस भी चाहिए। और ये आप यूनिवर्सिटी के साथ फ्रीलांसिंग में, लाइक अब मैंने काफी ज्यादा कोडिंग प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्ड हो चुका है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस स्टेज पे आ चुका है, मुझे अब जॉब की कोई जरूरत नहीं और मेरा कोई वो माइंड भी नहीं बन रहा, ना मुझे जीपीए की टेंशन है। और इवन दो इस टाइम पे भी मैं अपनी सेमेस्टर की फीस खुद दे रहा हूँ, अपने सॉफ्टवेयर हाउस खुद चला रहा हूँ, अपने सारे फाइनेंशियल जितने भी मैटर्स हैं वो सारे खुद ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो और कुछ लोगों को जो बहुत एक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है टाइम मैनेज का, तो यार देखो मेरे साथ जो डेनमार्क के क्लाइंट हैं मेरे, वो 20-21 एज के हैं, ठीक है। और उनका प्रोसेस क्या है कि वो खुद खाना बनाते हैं और खुद ही जो है सारी सेलिंग वगैरह सब लोग खुद करें। और ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये बाहर के मुल्क एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली एक लाइक उनका एक ट्रेंड है। यहाँ पे लाइक आप यूनिवर्सिटी के साथ कोई काम कर रहे हो तो यू फील यार कैसे मैनेज होगा,
ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ये हर यूनिवर्सिटी में, आप बेशक आप लोग के बाहर होंगे जो मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, उनसे बेशक पूछ लो कि आपने मॉर्निंग में अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो आपने इवनिंग में कोई ना कोई जॉब करनी है, ठीक है। और हमारे यहाँ आई एम नॉट श्योर कि क्यों ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब एज अ यूनिवर्सिटी हम लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आई मस्ट से कि यार आप लोग कोशिश करो, ठीक है। और कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, 3-4 महीने लगाओ बैठ के, फिर टीम बिल्ड करो, फिर सॉफ्टवेयर हाउस तक आओ, सॉफ्टवेयर हाउस से प्रोडक्ट्स पे काम करो, प्रोडक्ट बन के आपकी प्रोडक्ट सेल्स अच्छी होगी, मार्केटिंग टीम बनाओ, सेल्स की टीम बनाओ, देन उसके बाद आपके पास रेवेन्यू आता रहेगा और वो एवरग्रीन रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो फाइवर रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मेरे से। आई वुड, अगर किसी ने माइक ऑन करके पूछना है तो प्लीज पूछ ले। अगर चैट में आप लिखते हैं तो मैं बता दूंगा मिस्टर आसिम को आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि स्टार्ट कहाँ से करें, समझ नहीं आ रही। अच्छा यार, स्टार्ट का प्रोसेस ये है कि आपने देखो पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस फील्ड में काम करना है, लेकिन उसमें फिर ये है कि आपने फील्ड जब चूज कर ली कि आपने यहाँ डेटा एंट्री करनी है तो उसके साथ स्टिक करो। जब आप न्यू आते हो तो उसके बाद आपका ये प्रोसेस होता है कि आप फिर बहुत सारी चीजें जो है खुलती है। आईटी की फील्ड, सीएस की फील्ड बहुत ब्रॉड है, ठीक है। आपके साथ और भी बहुत चीजें आ जाती हैं, लाइक जस्ट इमेजिन कि आपने ग्राफिक्स से एक यूट्यूब का कोर्स शुरू किया, आपके सामने एसईओ आ गई, एसईओ से शुरू किया आपके सामने वर्डप्रेस आ गई, वर्डप्रेस से शुरू किया आपने पाइथन में देखा, पाइथन में आपके पास वेब डेवलपमेंट में डिजाइनो और फ्लास्क वगैरह आ गए, फिर आपके पास फ्लटर आ गई। ये सारी चीजें खुलती रहती हैं, तो ट्राई टू स्टिक एटलीस्ट फॉर 6 मंथ विद समथिंग। और फिर उसमें अगर आपको कोई चीज पता चल गई कि यार मैंने इसी पे करना है तो उस पर काम करो। हर फील्ड से पैसा निकल रहा है एज लॉन्ग एज आप उस पर टाइम लगा रहे हो। आपने जब गिग्स पोस्ट कर दिए देन उसके बाद वेट करो, बाय रिक्वेस्ट भेजो, गिग्स अच्छे से पोस्ट करनी है, उसके बाद बाय रिक्वेस्ट भेजो, ऑनलाइन रहो, रात के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेब स्क्रैपिंग का रोड मैप बता दें। यार वेब स्क्रैपिंग का ना, ये देखो मैं बताता हूँ, इवन तो मैंने खुद जो है ना यूट्यूब पे जाके मोहम्मद आसिम लिख लेना और साथ वेब स्क्रैपिंग, तो मेरा इतना पॉपुलर चैनल नहीं है तो उस पर तो शायद कुछ भी ना मिले। आप मतलब मैंने बिल्कुल प्रॉपर रोड मैप बताया हुआ है कि आपने जो है कैसे वो करना है, वेब स्क्रैपिंग में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन मैं एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगी। पाइथन की 2 लाइब्रेरीज हैं, रिक्वेस्ट और वेब ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम है। रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी के थ्रू जो ना आपने सिंपल एक यूआरएल पे रिक्वेस्ट करनी होती है, वहां से आपको एचटीएमएल फाइल मिलती है, एचटीएमएल फाइल से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो, डेटाबेस में पुश करते हो और वहां से उसका एनालिसिस करते हो और आप क्लाइंट को एक बिजनेस प्रोडक्ट दे देते हो कि यार आपका ये डाटा था, अब मैंने उसको एनालाइज करके आपको ये चीज दे दी है, ठीक है। तो 2 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट की है और सेलेनियम की। सेलेनियम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे कुछ सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, तो आप फिर उसको, सेलेनियम इज एक्ट लाइक अ ब्राउजर, ठीक है, और फिर आप वहां से जाके फिर इन दोनों कंबाइन करते हो। लेकिन एज टाइम आप इस चीज को लर्न कर लोगे। लेकिन 2 जो मेन चीजें एक्सप्लोर करने वाली हैं वेब स्क्रैपिंग में, पाइथन की रिक्वेस्ट और सेलेनियम लाइब्रेरी, इन दोनों को चेक कर लो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अलग ईमेल आपने क्यों कहा है बनाने का फाइवर के लिए। यार अलग ईमेल इसलिए मैंने बोला है कि उसमें प्रोसेस ये होता है कि आप जब अपना एक ही ईमेल यूज कर रहे हो तो आपके उस पर डिफरेंट और भी ईमेल्स आ रही हैं। अब ईमेल्स का काफी लोगों को इशू आता है कि यार हमारी 2 ईमेल्स हमको कैसे मैनेज करना है। तो मल्टीपल ईमेल्स, जब आपकी फाइवर के मैसेजेस क्यों बहुत ज्यादा आते हैं, वो आपको अपने प्रमोशनल बैनर्स भी भेजते हैं, आपको मैसेजेस भी जो आ रहे हैं, इन सारी चीजों के जो चीजें हैं ना, वो उसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ कि आप अपना ईमेल रखो। मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास ये एक अपना एक जो ईमेल है अपना, आप इसी पे जाके ईमेल फॉरवर्डिंग लगा सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ सेटिंग्स में जाना है, मैंने अपने एनजीओ की ईमेल भी मेरी इसी पे ईमेल आती है और मैं इधर से ही एनजीओ की ईमेल से भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं किसी दिन और सेशन कर लूंगा या क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपके अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट आता है और यहाँ पे आके जो है ना आप अपने अकाउंट्स ऐड करते हो और यहीं से आप जो है ना सारे अकाउंट्स में, लाइक इवन दो मैं अपने एनजीओ ईमेल, अपने फाइवर के, अपने अपवर्क के जितने भी सेपरेट ईमेल्स हैं वो यहीं से मैनेज कर रहा होता हूँ। सेपरेट ईमेल का सिर्फ कहने का इसलिए था कि आप एक ईमेल से
सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होती हैं, क्योंकि फिर फास्ट वाली जो अपनी एनजीओ ईमेल है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस और उस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो कीप इट ऑन अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, और उसको सेपरेट ही रखो तो ठीक रहता है। आसिम भाई नेक्स्ट सलमान भाई पूछ रहे हैं आपकी की ऑफ सक्सेस क्या है? लोग इतना सक्सेसफुल नहीं होते। यार की ऑफ सक्सेस ये है कि सुबह 7 बजे उठो, ठीक है, और शाम रात 10-11 तक लगे रहो, और फिर मतलब कहने का ये कि हार्ड वर्क करो और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक मैंने पहले 2 सेमेस्टर लाइक सेकंड सेमेस्टर में शुरू किया, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाज ऑलमोस्ट लाइक नाइटमेयर, ठीक है। एकेडमिक को भी लेके चलना था, प्रोजेक्ट्स भी करने थे, असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी की, स्पेशली डाटा स्ट्रक्चर की जो इतनी लंबे लंबे कोड्स लिखने थे। तो ये है कि फिर अवॉइड कर दो, कुछ गोलियां भी करानी पड़ती हैं, फैमिली इवेंट्स भी आपको मिस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 1 साल का प्रोसेस होता है, लाइक थोड़ा मुश्किल कि आपने सब कुछ छोड़ के फिर फोकस करना है चीज़ों पे, आपने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मेरे पास मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने यूट्यूब पे यकीन करो एक एक चीज़, अब मैं यूट्यूब पे जाके अगर पाइथन में कुछ भी लिखूं, मुझे हर बंदे का पता होता है यार ये वाली वीडियो है जो है मैंने देखी भी है। तो एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, नॉलेज आपके पास है जब तक, ठीक है, फिर आपके लिए चीज़ें करना भी आसान है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आया है ना, जब अब उस क्लाइंट ने जो चीज़ आपसे पूछी और आपने स्टार्ट करने से पहले उसका आपको आंसर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो फिर आप समझो कि फाइवर ने आपको जो शुरू में सपोर्ट दी है, ठीक है, तो वो फिर आपके हाथ से वो भी जाएगी। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लगाओ और उसके बाद ये चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। ये सबसे प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन कौन सा है और उसकी जिसकी डिमांड है फ्रीलांसिंग में? यार फ्रीलांसिंग में जैसे सर हिशाम ने कहा था, कोडिंग बहुत आइडियल है, और कोडिंग में भी वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग और एआई डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स कम है, लेकिन इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसका प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका प्रोसेस ये है कि आप जब थोड़ा सा एक्सपैंड होते हो तो आप स्टिक नहीं करते अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ, फिर उसमें कुछ और प्रोसेस हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग है, कोल्ड कॉलिंग है, फिर आप उससे ना डायरेक्ट क्लाइंट्स को आउटरीच करते हो, ठीक है। तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। लाइक आपके पास एक डेटा सेट है, आपने उसको निकाला, आपने कुछ ऑटोमेशंस कर दी, ठीक है, और आपने कॉल्स की, हेलो दिस एंड दिस, आई एम जॉन फ्रॉम कोडीजा, ठीक है, और वी आर प्रोवाइडिंग वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। फिर फाइवर पे आपने जो गिग बनाई है ना, फाइवर पे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं अच्छे, ठीक है, लेकिन उस लेवल के नहीं मिलते। रादर देन एक डायरेक्ट क्लाइंट आपको जो मिला है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब उसको फिर आप डोमेन भी सेल करते हो, आप उसको वेबसाइट एज अ वेबसाइट को फिर आप बेशक रिएक्ट में कर लो, तो मोर ओवर रादर देन ये डोमेन पे, आई थिंक ये सेल्स पे आपकी, और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्स पे डिपेंड करता है। कुछ क्लाइंट्स आप उसको कैसे कन्विंस करते हो। मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसने $100 पे आया था, और आई स्वेयर उसको हमने $800 तक हम उस प्रोजेक्ट को ले गए थे। लेकिन कोडिंग इज ऑल आइडियल है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम फाइवर पे एक ही निश की एक गिग बनाए उसका ज़्यादा फायदा है, या एक ही निश की एक से ज़्यादा गिग बनाए उसका ज़्यादा फायदा है? यार निच स्टिक रहना चाहिए, ठीक है, प्रेफरेंस तो मेरी यही है। और उसका कहने का बात ये होती है कि लाइक अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक के स्टोर पे गए हो, ठीक है, और तो वहाँ पे आपका यही हो कि इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट आपने बाय करनी है, वहाँ पे जाके आप कुछ लैपटॉप्स या कुछ उस तरह की मार्केट को नहीं देख रहे होगे, ठीक है। तो आप आपकी गिग पे अगर लिखा हुआ है आप जो है वेब स्क्रैपिंग पे काम कर रहे हो, तो यू कैन डू पाइथन में कुछ और उसका फ्रेमवर्क पे काम कर लो, दैट मेक सेंस, ठीक है। लेकिन 2 डिफरेंट नीचेस, लाइक आप एक साइड पे लोगो बना रहे हो, एक साइड पे आप पाइथन में वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, तो ये चीज ना हो। लेकिन आप डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन अगर वो सेम ही डोमेन में आ रही है। थैंक यू। थैंक यू। आसिम भाई अगर प्रोजेक्ट करते हुए स्टक हो जाए फिर क्या करें? अली को प्रोजेक्ट करते हुए स्टक हो जाओ, यार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और शुरू में यही होता था, और प्रोजेक्ट करने का टाइम भी नहीं होता था, तो उसमें बस ये करो कि फिर फेसबुक ग्रुप्स हैं कुछ, ठीक है, उनमें जाके जो है ना उसको आउटसोर्स कर दो, लेकिन पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। आउटसोर्स में कभी लाइक 10, 12, 20,000, $25,000 कमा के आउटसोर्सिंग मेक सेंस, ठीक है। शुरू में अगर इस चीज़ की आदत लगी ना, फिर एक टाइम आएगा कि आपको उससे खुद काम नहीं होगा, ठीक है, आपकी स्किल्स भी बिल्ड होंगी। तो ये यूनिवर्सिटी वाले प्रोसेस में स्किल्स बिल्ड कर लो, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा ट्राई कर लो, नहीं होता फेसबुक ग्रुप में आपको कोई ना कोई कर ही देगा, और बहुत अच्छी एवरेज भी कर देगा। लेकिन उसमें भी आपको फिर देख के आउटसोर्स करना है,
बाकी आप सबको ही पता है कि फिर पाकिस्तान में जो है और भी काफ़ी मसले हैं कि प्रोजेक्ट आप दे देते हो और आगे से फिर आपको कंप्लीट मिलता नहीं है, ठीक है। और आसिम भाई सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये? यार ये इवन तो आई स्वेयर मेरे साथ कुछ लोग हैं वो 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो आप डेटा एंट्री से शुरू कर लो, मैंने भी सेकंड में शुरू किया था, आप वेब स्क्रैपिंग से शुरू कर लो, आप पावर पॉइंट डिजाइन कर लो। इवन दो इफ आई से यू, ठीक है, कम्युनिकेशन तो पढ़ी है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पावर पॉइंट लिखता हूँ ना, तो जस्ट ठीक है, ये जो 15 टॉप रेटेड सेलर है ये सिर्फ गूगल से टेम्पलेट उठा रहा है और ये एक स्लाइड या एक डिजाइन जो है 24,000 में बना के दे रहा है। तो ये सिर्फ सेल्स और रैंकिंग पे, और ये खुद देख लो, ठीक है, ये समवन इज लाइक 800 में बना के दे रहा है, 460 रिव्यूज हैं, और आपके 70% ऑर्डर जो है रेटेड होते हैं, 30% क्लाइंट्स आपको रिव्यू दे के नहीं चाहते हैं। तो 800 को लाइक आई एम पिकिंग द मिनिमम वन जो मुझे नजर आ रही है, उसमें 815 को आप 462 से मल्टीप्लाई करो तो खुद देख लो कि आपका रेवेन्यू, सिर्फ ये वो फील्ड है जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड के, लेकिन ट्रस्ट मी स्टार्ट, क्योंकि यार देखो तुम लोग खुद जितने भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो ना 19-20 बैच, तो यही टाइम है स्टार्ट करने का। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो 18 बैच हैं बहुत कम है, आप अपनी रेशियो देखो तो बहुत ज्यादा है। तो 18, 19, 20 लाइक आपके शुरू के 1-2 साल होते हैं, आप वहाँ पे अगर आपका इस चीजों में इंटरेस्ट बन गया तो ठीक है, उसके बाद आपके पास और काफी चीजें आ जाती हैं कि फिर आप इन चीजों में फोकस नहीं कर सकते। और does staying active and inactive in different time spans of your semester make a difference in your ranking? सॉरी, कह रहा हूँ कि अगर आप सेमेस्टर के दौरान एक्टिव और इनएक्टिव हो डिफरेंट स्पैन्स में, तो वो रैंकिंग डालती है? नहीं यार, आप रात में ऑनलाइन, क्लाइंट्स यूजली यूएस यूके बाहर से ही है, ठीक है, और उसमें जो है फिर आप रात का टाइम लाइक अराउंड शाम के 9 बजे से सुबह 6 बजे का टाइम बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। लेकिन आप 9 से 2 तो काफी लोग जा भी रहे होते हैं, 9 to 2, 3 आप कवर अप चीजें कर लेते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। और बाकी तो मोबाइल ऐप होती है, ठीक है, तो इट डजंट मेक सेंस। मोबाइल में भी तो यूनिवर्सिटी आता जाता हूँ ना यार, और 9 to 2 वाला टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट सर्वर चाहिए होते हैं, तो वो ऑनलाइन वाला फिल्टर आते हैं, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई खास स्किल नहीं हो तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से लेवल तक कोई चीज सीखें? हाँ, ये जो है ना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यार ये देखो कि पहले अपने आप को ना जिस चीज में आपका दिल लग रहा है, ठीक है, मेरा पाइथन में, मेरा कोडिंग में बहुत जो है दिल करता है, ठीक है, लाइक मैं कोई और काम कर रहा हूँ ना तो मैं शायद 2 घंटे में बस यार और नहीं करना मैंने, लेकिन कोडिंग का कोई प्रोजेक्ट है तो बेशक मैं इवन दो कि पूरी रात उठा रहा हूँ, खाना तक ना खाऊं, मेरा दिल करता है यार मैं करता जाऊँ, ठीक है। तो जिस चीज में आपका दिल लग रहा है आप खुद ही उसमें जो आपको मॉड्यूल्स निकलते जा रहे हैं, लाइक इफ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, आपको पता चला रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के बाद आपको पता चला यार एसएसएल्स है, सिक्योरिटीज है, कैप्चा सॉल्विंग है, तो अगर तो आप में उसमें इंटरेस्ट बनता जा रहे तो उस चीज को फिर कभी ना रोकना, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है, आपका दिल करे, आप थक नहीं रहे हो उस चीज में, तो उस चीज फील्ड को जो है ना पिक कर लो। सेकंड सेमेस्टर में तो हमारे पास इतने प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होते, तो हम जो प्रोजेक्ट्स करेंगे वो हमारी अपनी स्टडी पे होंगे, सेल्फ स्टडी पे। हाँ यार, ये देखो यूनिवर्सिटीज है, या आप यूनिवर्सिटी से बेशक ग्रेजुएट होकर चले जाओ, तो इवन दो अभी मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ बेसिक्स ही बताती है, आपने चीजें खुद करनी है। तो अगर तो आप बेशक 4x4 जा रहे हो ना यूनिवर्सिटी से लेके मार्केट में जा रहे हो ना, तो मार्केट में आप यूनिवर्सिटी आपको बहुत वो हाई फाई स्किल्स नहीं देगी, आपने फिर भी 2, 4, 8 महीने की इंटर्नशिप करनी है, आपको वर्कफ्लो पता चलेगा, आपको पता चलेगा यार यहाँ पे कौन सी चीजें मुझे लर्न करनी है। जो मार्केट में काम हो रहा है टेंसर फ्लो और जितनी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो यूनिवर्सिटी आपको उस तरह नहीं सिखाती। तो आपने एज जॉब करनी है, फ्रीलांसर करनी है, जो भी आपने चीज करनी है तो वो आपने खुद ही सीखनी है, ठीक है। और सेल्फ प्रोजेक्ट्स में लाइक अगर आपको पाइथन में डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट मिलता है तो सिंपल गो टू द यूट्यूब और सिंपल वहाँ पे जाके लिखो पाइथन पांडास लाइब्रेरी या पाइथन डेटा एनालिसिस, 1 महीना लगाओ, चीज सीख लिए, देन स्टार्ट योर वर्क। आपका पहला प्रोजेक्ट पूछा जा रहा है यार पहला प्रोजेक्ट ना, तुम लोग कहोगे यार क्या करता रहा था मैं, लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है ना $10 का था, और नहीं बल्कि पहला प्रोजेक्ट $5 का था, और वो सिंपल एक डेटा एंट्री, लाइक ही हैज सम 50 पीडीएफ की, और 50 पीडीएफ में ना उसने मुझे वो उसमें जो प्रोफाइल का नाम था बंदे का, सॉर्ट ऑफ
सीवी थी, प्रोफाइल का नाम था, उसका जो स्किल्स थी उनको देना था, तो उसको फिल्टर लगाना था उस पर, तो मैंने उसको फिर एक्सेल में वो सारी टाइप करके दी, तो वहां से हम शुरू हुए थे और अभी इधर है। कोई स्किल्स कंप्लीट सीखे या फिर बेसिक नॉलेज इनफ है? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही कह रहा हूँ, स्टार्ट पे जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे ना तो आपको 100 और डोमेन्स खुल जाएंगे इस फील्ड में, ठीक है। सीएस की फील्ड में आप एक्सप्लोर करना होगा तो बहुत कुछ खुल जाता है, ठीक है। एक चीज को पिक कर लो, पाइथन से अगर शुरू करना है, पाइथन में वेब डेवलपमेंट करनी है तो वेब डेवलपमेंट में फ्लास्क है, डिजांगो है। ऐप डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, फ्लटर गुड ऑप्शन। उसके अलावा लेकिन जिस चीज को भी कर रहे हो उसको स्टिक कर लो, ये ना हो कि यार हर चीज कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया इतनी जो है ना एडवांस हो चुकी है कि आपको सब कुछ आता है तो नो वन इज गोइंग टू हायर यू, ठीक है। हाँ, उनको बंदा चाहिए वेब डेवलपमेंट का, और आप में वेब डेवलपमेंट के 10-15 प्रोजेक्ट्स किए हुए तो नो वन इज गोइंग टू रिजेक्ट यू, ठीक है। तो जो भी फील्ड उठा रहे हो उस पर बेशक फिर 2-3 साल लगाओ, आपका टाइम जो है, जब यूनिवर्सिटी से निकलोगे ना तो आई स्वेयर अगर अभी स्टार्ट करें तो जॉब की कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और देन उसके बाद आप उसमें इतने मास्टर्स कर लोगे, लाइक अगर बेशक आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे फ्रीलांसिंग में, लेकिन आपने एक चीज को लर्न कर ली है ना, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करना शुरू कर दो, कुछ ऐप बनाना शुरू कर दो। जब जॉब पे करने चाहोगे ना तो 50 लोग अगर फास्ट से जाके अपना FIP या अपना 6 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट करेंगे, हमने ये चीज की थी, तो अगर आप वहां जाके प्रेजेंट कर रहे हो यार मैंने ये की थी, तो उस बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको लग रहा है कि यार इस बंदे ने कुछ डिफरेंट किया, और रादर देन 50 लोग मुझे आके यही बोल गए कि हमने सेम प्रोजेक्ट किया था। क्योंकि इवन तो हम लोग जब यहाँ पे हायरिंग्स करते हैं तो यूनिवर्सिटी से जो सेम लोग आते हैं ना, उनके आप प्रोजेक्ट देखो ना CV पे, उनके प्रोजेक्ट सेम ही होते हैं सबके, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया हो या कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट किया हो। तो स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज, गिटहब और Behance फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स है, वो चेक कर लो। How to build portfolio as a Python web scraping expert? यार उसमें सब जितनी भी डिमांड्स आती है ना वो सारी गिटहब पे आती है, तो गिटहब पे जाओ और सिंपल जाके वहाँ पे जो भी है, इसमें अब ये पाइचार्म मैंने किया हुआ है, ठीक है, और सिंपल पाइचार्म का कनेक्शन कर लो गिटहब से और अपनी जो है ना जितनी भी रिपोजिटरीज हैं, और ये कोई नो वन इज गोइंग टू सी कि आपने जो है ना बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्ट किया हुआ है, कोई सीन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 4 लाइनों कोड की लिख रहे हो, पुश इट ऑन गिटहब, ठीक है। आप बेशक 10 मिनट लगा रहे हो ना, उसको पुश कर दो गिटहब पे, ठीक है। एज लॉन्ग एज सी वो आपको टाइम देखोगे यार, आप एक चीज कॉन्स्टेंटली जो है ना 6 महीने से कर रहे हो, 6 महीने नहीं, लाइक यू जस्ट स्पेंड 1 मंथ और आप उसको कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, ठीक है। अपना एक आइडिया पिक करो और स्टार्ट पोस्टिंग ए प्रोजेक्ट, और लाइक अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो अपने किसी दोस्त के साथ बैठो और उसके साथ जो है ना आइडिया शेयर करो कि यार ये देखो ये एक मार्केट में इशू है, इसका सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट एंड तो सीख सकते हो ना, लाइक उसमें AI मशीन लर्निंग डेटाबेस को छोड़ दो, फ्रंट एंड तो आ ही सकता है ना यार, उसको तो कर लो बेशक, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। फोटोग्राफी के रिलेटेड कोई काम है, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग वगैरह? यार फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा काम है, वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, इवन दो अब मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है, बट इफ़ आई शो यू गाइस वंस अगेन, तो मेरे ख्याल से मैंने जब शुरू किया था उस टाइम पे मैंने चीज़ चेक की थी, तो मेरे ख्याल से लोग जो है ना सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने का ना बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये सिंपल होता है, ठीक है। जो भी है जूलिया, ठीक है, 815 चार्ज करती है 20 इमेजेस से, ठीक है। एक वेबसाइट है remove.bg, वो AI बेस्ड है, ठीक है, और वो उस पर आप पिक्चर डालो आपको जो है ना वो बैकग्राउंड रिमूव कर देती है, और 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। तो ये खुद ही देख लो, और ये सिंपल इसका बेसिक पैकेज है जो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप प्रीमियम पे जाओ तो 5000 सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के, ठीक है। और शी हैज कंप्लीटेड, और जिसके ऑर्डर्स हैं 2400 समथिंग जो है उसने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। तो अगर एवरेज प्राइस 3000 भी कर रहे हो उसकी, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे प्रोजेक्ट की प्राइस $50 है तो और मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो 200, 300, 400 तक आई स्वेयर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनको जाके जो है ना एक्सप्लोर करो तो तुम्हें लोग खुद पता चल जाएगा यार, बिल्कुल लाइक नियरली कोई स्किल नहीं रिक्वायर्ड है स्टार्ट करने के लिए। कोडिंग कहाँ से सीखें और कौन सी लैंग्वेज पे क्लिप करनी है? यार ये मेरे ख्याल से कोई फास्ट के बायर वाला है, फास्ट में होके क्वेश्चन, लेकिन अगर पाइथन में करना है तो पहले तो एक्सप्लोर करेगा पाइथन में, C++ में किस फील्ड में काम करना है, ठीक है। अगर तो वेब एप्लीकेशंस पे आना है और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे आना है, फ्रेमवर्क्स पे आना है, जिस पे भी आना है पहले उसको एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैंने खुद इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं पाइथन में मुझे काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया, लाइक रिलेटेड टू वेब,
ठीक है। तो लेकिन अब सीखनी कहाँ से यार, सिंपल यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट्स हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हैकर रैंक है, ठीक है, और गीक्स फॉर गीक है, और कुछ डेटा कैंप्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर लो। और सिंपल इफ यू गो टू यूट्यूब यार, वहाँ पे सिंपल जाके टाइप कर लो पाइथन डिजेंगो, ठीक है। लाइक अगर डिजेंगो का भी इवन तो किसी को नहीं आइडिया है, ठीक है, और यहाँ से फिल्टर लगा लो प्लेलिस्ट का, ठीक है, और सिंपली लाइक 30 वीडियोस है ना, अब ये आपको कंप्लीट डिजाइंगो सिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से सीख लेनी चाहिए इसमें ऐसा। लाइक विद इन द कोविड पीरियड तो आप लोगों के लिए बोनस है। और मेरा जो पार्ट टाइम था, आई स्वेयर यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, कम्युनिकेशन लैब मुझे बहुत जहर लगती थी, और वो सारी लैब्स के साथ ये सारी चीज़ें मैं सीख भी रहा था, प्रोजेक्ट भी यूनिवर्सिटी ये कर रहा था, और आई स्वेयर मेरी कोई डिग्री वगैरह कोई लेट नहीं है, ठीक है, और जीपीए मेरा अराउंड 2.5 से 3 के बीच में ही है, ठीक है। तो लाइक एक एवरेज जीपीए भी है, डिग्री भी लेट नहीं है, तो ये प्रोसेस है, और ये मैं सारी चीज़ें उस टाइम उसी के साथ कर रहा था, तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग हैं वो वर्ड फाइल से पीडीएफ बना के बेचते हैं फाइवर पे, तो वो कोई वेबसाइट यूज करते हैं, और क्या हम ऐसे बेच सकते हैं? यार क्लाइंट की देखो डिमांड जो है ना, ये आपकी एकेडमिक असाइनमेंट तो नहीं है कि आपका जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं या वो हैं, ठीक है, ये सेम लाइक क्लाइंट को जो उसका काम है ना, वो आपको बता देगा मुझे ना वर्ड से पीडीएफ से वर्ड चाहिए, ठीक है। आप बेशक कोई टूल यूज करो, कोई उसको इमेज प्रोसेसिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, क्लाइंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट को सिर्फ काम चाहिए, ठीक है। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने एक टूल यूज किया जो ऑलरेडी बिल्ड था, ओपन सोर्स टूल था जो आपने यूज किया, और आपने उसका काम उसको करके दे दिया, ठीक है, तो कोई इसमें वो गलत वाली चीज नहीं है। अकेले शुरू करना चाहिए या फिर ग्रुप के साथ? यार थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि अगर तो आपको ग्रुप मिल जाता है, लाइक एक बहुत ही वो बात लग रही है मुझे कि शुरू में बहुत मुश्किल होता है कि यू फाइंड समवन आपने सेम पोटेंशियल या सेम गोल्स के साथ। तो अगर तो आपको ग्रुप मिल रहा है, आप लोग बैठ रहे हो कि यार हमने फाइवर आज बनाना है, शुरू करते हैं, 30 डेज बाद हमारा ये गोल है, मेक सेंस, ठीक है। ग्रुप शुरू से ही आप एक टीम में चल रहे हो तो फिर तो बहुत बेस्ट है, आपके लिए प्रोजेक्ट्स करना भी आसान होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले शुरू कर रहे हो तो आफ्टर दैट यू मस्ट बिल्ड अ टीम, अकेले आपसे हाथ कुछ भी नहीं होगा। एआई के स्टूडेंट को कैसी स्किल सीखनी चाहिए? सॉरी यार, मेरा माइक जो है ना वो स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया, रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ कि एआई के स्टूडेंट को कैसी स्किल, कौन सी रिलेटेड स्किल सीखनी चाहिए आर्टिफिशियल? यार एआई वालों को तो पाइथन का तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन यार एआई मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में ना प्रोजेक्ट्स जो आते हैं ना वो थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं। लाइक इवन दो तो मैं खुद उसको एक्सप्लोर कर रहा था अपवर्क पे, तो मुझे उनका थोड़ा सा ना खुद वो इस तरह के लग रहे थे कि मेरी समझ से बाहर थे, ठीक है। तो लेकिन एआई में पिक कर लो मॉड्यूल, लाइक एआई में मैंने बिल्कुल कोई अभी मैं एआई का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया क्या चीज़ें हैं, लेकिन एआई के कुछ मॉड्यूल ऐसा पिक करो और उसको फिर जाके फाइवर अपवर्क पे यहीं पे जाके देखो कि उस टैलेंट की डिमांड है या नहीं है, फिर उसको चेक कर लो। हम अपनी सेम नीश के लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं टीम बनाने के लिए? अच्छा, तो इसमें ये प्रोसेस है कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है आपको जो है सेम ढूंढना, ठीक है, लेकिन आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मेरे साथ जो 4 लोग हैं मेरी टीम में जो मेरे साथ पूरा सेटअप चला रहे हैं और 8-10 एम्प्लॉयज हमको निकाल के, यकीन करो कि उन सारे 4 लोगों को मैंने खुद ही जो है सारे ट्रेन किया है, उन्हीं को मैंने समझाया, बट दे आर ट्रस्टवर्दी। बात सिर्फ ट्रस्ट की है, लॉयल्टी की है, ठीक है। अगर तो वही 2 चीजें हैं किसी इंसान में आपको नजर आ रही है और आपको लग रहा है कि वो आपको डिच नहीं कराएगा या कोई इस तरह का प्रोसेस है, तो उसको ट्रेन करो, उसको मोटिवेट करो कि यार आप ये चीज कर सकते हो, आप ये वो। तो आपको थोड़ा सा लोगों को बिल्ड करना पड़ता है, आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है कि यार मेरा गोल है, ये गोल देखो और उसको बताओ कि यार इसमें इतना पोटेंशियल है। और अगर जब आप डेफिनेटली आप अगर किसी को बता रहे हो कि यार इस चीज में पोटेंशियल है और उसको नजर आ रहा है उसका फायदा, तो डेफिनेटली ही और शी जो भी है वो आपको ज्वाइन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हम बाय रिक्वेस्ट कैसे ज्यादा करें? उनके बाय रिक्वेस्ट 1-2 आती हैं, गिग्स भी 4 हैं।
यार गिग्स तो 5 पोस्ट कर लो, बाय रिक्वेस्ट जो है आपको 5-6 शुरू में शो होंगी लाइक फॉर 1-2 मंथ्स, ठीक है। जब आप लेवल 1 होंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1000 पे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे पास अभी 2000 प्लस आ रही थी, तो वो तो खुद ही होंगी, उस पर तो आप खुद नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये आपको जो 4-5 शो हो रही है ना, उनको जो है पिच कर दो फॉरन और टेम्पलेटाइज, उसको वेट ना करना, क्योंकि नो वन केयर्स। क्योंकि फाइवर पे जो भी क्लाइंट आता है ना उसको, लेकिन थोड़ा सा देख के करना, ये ना बिल्कुल उसका बजट पर $100 आप उसको 500 का जो है यार उसको कॉस्ट दे रहे हो। बाकी एक उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है इंक्रीज कर सकते हो विदाउट एनी लेवल। और लेवल आपका मैंने बताया था $400, 60 डेज सेलर सीनियरिटी और 4.7 से प्लस रेटिंग होनी चाहिए। और बाकी वो लेवल वाले सेक्शन में जाके देख लेना। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक्सपर्ट बने या फिर साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस को भी लेके चलें? गुड क्वेश्चन। अच्छा यार, लैंग्वेजेस में ना काफी लोगों का शुरू में क्वेश्चन आता है, लाइक मुझे तो किसी ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि यार CS में ना जाओ, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, तुमने पाइथन सीख ली, तुमने C++ में एक्सपर्ट बन गए, कल को नया फ्रेमवर्क आ जाएगा, नई लैंग्वेज आ जाएगी तो बस ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। कोडिंग आपकी जो है ना वो सिर्फ लॉजिक्स में, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है। साइंटिक्स का क्या है यार, साइंटिक्स तो आपको 2 हफ्तों में लगता है। कोई भी नई लैंग्वेज है आपको साइंटेक्स, वो फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट, लूप्स का कॉन्सेप्ट, एरे का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर सब सेम नहीं है। लेकिन स्टिक करो, कोडिंग अपनी अच्छी रखो, लेकिन स्टिक कर लो अभी इसी टाइम से किसी एक लैंग्वेज के साथ, ठीक है। और अभी इस टाइम पे पाइथन, और वेब में जो है रिएक्ट, और ऐप डेवलपमेंट में फ्लटर ऐप में आप वेब में रिएक्ट और एंगुलर, और जो आप वेब ऐप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं उनमें जो मुझे लगता है वो जावा ही है, क्योंकि मैंने उसके साथ एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लो और इनमें से किसी का स्टिक कर लो, ताकि कल को जॉब में पिच करने जाओ, एज ए ऐप डेवलपर जाना है, एज ए वेब डेवलपर जाना है, ठीक है, तो आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हों इनके, रादर देन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के। और क्वेश्चंस तो नहीं है हमारे पास, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरे ख्याल से तो और कुछ ठीक है वलीद, मैं आई थिंक इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम लोग जो है फिर कोई और सेशन कर लेंगे जिसमें आप को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है आसिम भाई, बहुत शुक्रिया आप आए, आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है और बहुत सीखा हमने माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और सेशन हम आपको बुला लेंगे और सीख जाएंगे। थैंक यू वलीद, आप लोगों ने इनवाइट किया, और जी लगा के काम करो और करते रहो, डटे रहो, इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।